हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश का लेसन नंबर 13 जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। युवाओं के लिए अवसर। You know that I once wrote a book called The Discovery of India। आप जानते हैं कि मैंने एक बार द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। I was engaged in that quest long before I wrote that book। मैं उस किताब को लिखने से बहुत पहले से उस खोज में लगा हुआ था। It was not mere curiosity that led me to that quest। यह केवल जिज्ञासा नहीं थी जो मुझे उस खोज तक ले गई। I was engaged in many activities and I wanted a proper reconciliation between my activity and my thought। मैं कई गतिविधियों में लगा हुआ था और मैं अपनी गतिविधि और अपने विचार के लिए बीच एक उचित सामंजस्य चाहता था। Thought without action is abortion। Action without thought is folly। कार्यवाही के बिना विचार गर्भपात है। बिना सोचे समझे कर्म करना मूर्खता है। Of course, we sometimes act on some impulse on irrepressible urge। बेशक हम कभी-कभी किसी आवेग या अपरिवर्तनीय आग्रह पर कार्य करते हैं। If suddenly you throw a brick at me and my hand goes up to protect myself, it is an automatic, instinctive action and not a result of deliberated thought। यदि आप अचानक मुझ पर एक ईंट फेंकते हैं और मेरा हाथ अपनी रक्षा के लिए ऊपर जाता है, तो यह एक स्वचालित सजग क्रिया है, न कि जानबूझकर किए गए विचार का परिणाम है। Our living is conditioned by a series of automatic action from morning till night। हमारा जीवन सुबह से रात तक स्वचालित क्रियाओं की एक श्रृंखला द्वारा वातानुकूलित है। Anything we do outside that common range of action, however, has to be preceded by some measure of thinking। हालांकि हम उस सामान्य श्रेणी के कार्यों के बाहर जो कुछ भी करते हैं उसके पहले कुछ सोच होनी चाहिए। The more action and thought are allied and integrated, the more effective they become and the happier you grow। जितना अधिक कार्य और विचार संबंध और एकीकृत होते हैं, वे उतने ही प्रभावी हो जाते हैं और आप उतने ही खुश होते हैं। There will then be no inner conflict between wish to do something and inability to act, or between thinking one way and acting in another। तब कुछ करने की इच्छा और कार्य करने में असमर्थता के बीच या एक तरह से सोचने और दूसरे में कार्य करने के बीच कोई आंतरिक संघर्ष नहीं होगा। The happiest man is he whose thinking and action are coordinated। सबसे सुखी मनुष्य वह है जिसकी सोच और कर्म समन्वय हो। Happiness, after all, is an inner state of mind। खुशी आखिरकार मन की एक आंतरिक स्थिति है। It is little dependent on outside environment। यह बाहरी वातावरण पर बहुत कम निर्भर है। Happiness has very little to do, for instance, with whether you are rich or not rich। उदाहरण के लिए, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो न हो, खुशी का बहुत कम लेना देना है। Some of the most miserable person I have come across in my life are the rich people। मैंने अपने जीवन में जिन सबसे दुखी व्यक्तियों का सामना किया है उनमें से कुछ अमीर लोग हैं। It is true that poverty makes one miserable in a very acute way। यह सच है कि गरीबी बहुत तीव्र रूप से दुखी करती है।
But my point is that it is not wealth but coordination of one's thought and action which removes inner conflicts. लेकिन मेरा कहना यह है कि यह धन नहीं है बल्कि किसी के विचार और कार्य का समन्वय है जो आंतरिक संघर्षों को दूर करता है. It is in that way that integration of personality is achieved. इस तरह व्यक्ति का एकीकरण प्राप्त होता है. We were engaged, as you know, in a very great movement in India. जैसा कि आप जानते हैं हम भारत में एक बहुत बड़े आंदोलन में लगे हुए हैं. Because that movement was intimately concerned with the freedom of India. I was led to wonder what exactly India is. क्योंकि उस आंदोलन का भारत की स्वतंत्रता से गहरा संबंध था, मुझे आश्चर्य हुआ कि वास्तव में भारत क्या है. I knew of course the geography of India. बेशक मैं भारत का भूगोल जानता था. I knew many other odd facts about India too. मैं भारत के बारे में कई अजीब तथ्य जानता था. I was not prepared to accept it on faith that because I was born in India, therefore India was the greatest country in the world. मैं इस विश्वास पर स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ था इसलिए भारत दुनिया का सबसे महान देश था. That is the kind of folly in which the people of every country indulge. यह एक ऐसी मूर्खता है जिसमें हर देश के लोग लिप्त हैं. There are quite enough people in India who think that India is obviously the greatest country. भारत के काफी लोग जो सोचते हैं कि भारत निसंदेह सबसे महान देश है. In the days when we were politically subject and could not take much pride in our political condition, we prided ourselves on our spiritual greatness. उन दिनों में जब हम राजनीतिक रूप से अधीन थे और अपनी राजनीतिक स्थिति पर ज्यादा गर्व नहीं कर सकते थे, हमें अपनी आध्यात्मिक महानता पर गर्व था. Having nothing else to get hold of, we took refuge in spirituality. पकड़ने के लिए और कुछ नहीं होने के कारण हमने अध्यात्म की शरण ली. If you go to other countries, I shall not name them as I do not offense, you will find the people there think that their country is the chosen country, the torch bearer of civilization. यदि आप दूसरे देशों में जाते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अपराध नहीं करता. आप पाएंगे कि वहाँ के लोग सोचते हैं कि उनका देश चुना हुआ है देश है जो सभ्यता का मशाल वाहक है, सबसे उन्नत देश है, सबसे क्रांतिकारी है. The most advanced country, the most revolutionary country, the country with the biggest buildings, unique some mission or the other. देश सबसे बड़ी इमारतों वाला देश, अद्वितीय कोई न मिशन करने वाला देश. किसी के लिए अपने देश और अपने लोगों को पसंद करना स्वाभाविक है. It is natural for one to like one's own country and own people. It would be unnatural not to do so. ऐसा न करना अस्वाभाविक होगा. अपने देश पर थोड़ा गर्व होना चाहिए. Is good to be a little proud once our country. अब हमारे देश पर अपना थोड़ा गर्व होना अच्छा होता है. But it is wrong to start imagining that we are the highest and we best in the world. लेकिन यह कल्पना करना गलत है कि हम दुनिया में सबसे ऊंचे हैं और हम सबसे अच्छे हैं. The fact is that every country and every people have admirable points about them. They have great achievements to their credit and they have also made periods in their history. तथ्य यह है कि प्रत्येक देश और प्रत्येक व्यक्ति के पास उनके बारे में सराहनीय बातें हैं, उनके पास महान उपलब्धियां हैं और उनके इतिहास में उनके बुरे दौर भी हैं.
This applies not to countries only but to individuals also. यह न केवल देशों पर बल्कि व्यक्तियों पर भी लागू होता है। Nobody is perfect. He was weakness and failings. यह न केवल देशों पर बल्कि व्यक्तियों पर भी लागू होता है। कोई भी पूर्ण नहीं है, उसके पास कमजोरियां और असफलताएं हैं। Nobody is thoroughly bad either. We are all mixture of good and evil, but we should try to further the good in ourselves and in others. कोई भी पूरी तरह से बुरा नहीं है, हम सभी अच्छे और बुरे के मिश्रण हैं, लेकिन हमें अपने और दूसरों में अच्छाई और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। Most of you probably did not see गांधी जी at close quarters. आप में से अधिकांश लोगों ने शायद गांधी जी को नजदीक से नहीं देखा होगा। He had amazing qualities. One of these qualities was that he managed to draw out the good in another person. उनमें अद्भुत गुण थे। इन गुणों में से एक यह था कि वह दूसरे व्यक्ति में अच्छाई निकालने में कामयाब रहे। The other person may have had plenty of evil in him. हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति में बहुत सारी बुराई हो, but he somehow spotted the good and laid emphasis on that good. लेकिन उन्होंने कुछ लोगों ने अच्छे को देखा और उस पर अच्छे पर जोर दिया। The result was that the poor man had to try to be good. He could not help it. He would feel a little ashamed when he did something wrong. नतीजा यह हुआ कि गरीब आदमी को अच्छा बनने की कोशिश करनी पड़ी। वह इसकी मदद नहीं कर सके। जब उसने कुछ गलत किया तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। People who always seek evil in others find it. This applies to nations as well as individuals. जो लोग हमेशा दूसरों में बुराई ढूंढते हैं वे उसे ढूंढ लेते हैं। यह राष्ट्रों के साथ साथ व्यक्तियों पर भी लागू होता है। Go to a foreign country. You are likely to find many things that you do not like. एक विदेशी देश में जाओ, आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलने की संभावना है जो आपको पसंद नहीं है। Are you going to spend your time finding out the evil in other countries, or rather in finding out the good in them and profiting yourself and others by your contact? क्या आप अपना समय दूसरे देशों में बुराई का पता लगाने में खर्च करना जा रहे हैं, या बल्कि उनमें अच्छाई खोजने में और अपने संपर्क से खुद को और दूसरों को लाभान्वित करने में? We are all much too apt to look at the evil in other individuals and countries rather than the good. हम सभी अच्छे के बजाय अन्य व्यक्तियों और देशों में बुराई को देखने के लिए बहुत अधिक उपयुक्त हैं। Perhaps some of you know the saying in the Bible about the person who could not see the beam in his own eye and saw the mote in the other eyes. शायद आप में से कुछ लोग बाइबल में उस व्यक्ति के बारे में कहावत जानते हैं जो अपनी आंख में बीम नहीं देख सकता और दूसरे की आंख में कांटे देख सकता है। I am sorry if you think I am rambling, but this is, I might inform you in secret, a very clever attempt to get behind your mind. I am at least being frank with you. मुझे खेद है अगर आपको लगता है कि मैं जुआ कर रहा हूँ, लेकिन यह है मैं आपको गुप्त रूप से आपके दिमाग के पीछे जाने की एक बहुत चतुर कोशिश के बारे में बता सकता हूँ। मैं कम से कम आपके साथ खुलकर बात कर रहा हूँ। Having got the larger frame, I looked more closely at my own country and wrote
the discovery of India. In it, I concentrated on my country's past and the story of its development. बड़ा फ्रेम मिलने के बाद मैंने अपने देश को करीब से देखा और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। इसमें मैंने अपने देश के अतीत और उसके विकास की कहानी पर ध्यान से केंद्रित किया। I am trying to explain to you how my thinking developed in these matters. The thought and the more I learned, the more I saw how little I knew and how much more there was to learn. मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाएं कि इन मामलों में मेरी सोच कैसे विकसित हुई। जितना सोचा और जितना सीखा उतना ही मैंने देखा कि मैं कितना कम जानता था और कितना कुछ सीखना बाकी था। One of my regrets today is that I have no time to pursue these studies properly by reading or thinking or writing, because writing for me is essential and aid to thinking. आज मेरा एक पछतावा यह है कि मेरे पास पढ़ने, सोचने या लिखने के द्वारा इन अध्ययनों को ठीक करने का समय नहीं है, क्योंकि मेरे लिए लिखना अनिवार्य रूप से सोचने में सहायक है। In trying to write, one has to think more consciously than otherwise. लिखने की कोशिश में किसी को अन्यथा की तुलना में अधिक संक्षिप्त रूप से सोचना पड़ता है। I suppose I must not complain of my present lot. मुझे लगता है कि मुझे अपने वर्तमान के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। What I would like you to do first of all is to think. मैं आपको सबसे पहले जो करना चाहता हूँ वह है सोचना। Thinking is something which does not come automatically to a person. सोचना एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति के पास अपने आप नहीं आती है। Gossiping with a neighbor is not thought. पड़ोसी के साथ गपशप करना नहीं सोचा जाता। If you repeat something which somebody else has said, it is not thought. अगर आप किसी और की कही हुई बात को दोहराते हैं तो वह सोचा नहीं जाता। I do not accept all of you to become mighty thinkers, though some of you may. मैं आप सभी से शक्तिशाली विचारक बनने की उम्मीद नहीं करता, हालांकि आप में से कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। But I would like all of you to think and to develop the art of thinking. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी सोचें और सोचने की कला को विकसित करें। Nothing is more helpful to thinking than reading intelligently, because thereby you get other people's thoughts and by viewing them you can think yourself. सोचने के लिए पढ़ने से ज्यादा मददगार कुछ नहीं है, यानी समझदारी से पढ़ना, क्योंकि इससे आपको दूसरे लोगों के विचार मिलते हैं, उन्हें तोड़कर आप खुद सोच सकते हैं। I have often said that it is very unfortunate that people think and read so little nowadays, especially in India. मैंने अक्सर कहा है कि यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल लोग इतना कम सोचते हैं और पढ़ते हैं, खासकर भारत में। I do not call newspaper reading a reading, but any reading which makes you think is useful reading, even if it is a very good novel. मैं अखबार पढ़ना नहीं कहता, लेकिन कोई भी पठन को जो आपको अच्छा लगता है कि पढ़ना उपयोगी है, भले ही वह एक बहुत अच्छा उपन्यास हो। Great novels always make one think, because they are pictures of life painted by great minds. महान उपन्यास हमेशा सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि वे महान दिमागों द्वारा चित्रित जीवन के चित्र हैं। If you think about the 5-year plans, you will find what a vital part the engineer plays in them.
यदि आप पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में सोचते हैं तो आप पाएंगे कि इंजीनियर उनमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। We shall require tens of thousands of engineers and hundreds of thousands of overseers, mechanics and other technicians for our plans. हमें अपनी योजनाओं के लिए दसियों हजार इंजीनियर और सैकड़ों हजारों ओवरसीरियर यांत्रिकी और अन्य तकनीशियनों की आवश्यकता होगी। The whole world is becoming more and more a world of trained people. पूरी दुनिया अधिक से अधिक प्रशिक्षित लोगों की दुनिया बनती जा रही है। They need to be trained to in two ways. उन्हें दो तरह से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। They must be trained in mind and have some vision and understanding of the world picture. उन्हें दिमाग में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और दुनिया की तस्वीर के बारे में कुछ दृष्टि और समझ होनी चाहिए। Then they must be trained by particular jobs which they can do well, whether to be science or engineering or medicine or education. Such are the skills which will build India. फिर उन्हें विशेष नौकरियों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो वे अच्छी तरह से कर सकते हैं, चाहे वह विज्ञान हो या इंजीनियरिंग या चिकित्सा या शिक्षा। ऐसे कौशल हैं जो भारत का निर्माण करेंगे। Frankly, the job of the politician will not build India, although I speak as a politician. सच कहूँ तो राजनेता के काम से भारत नहीं बनेगा, हालांकि मैं एक राजनेता के तौर पर बोलता हूँ। A politician is a useful person in his own way, though it is conceivable that in a perfect society the politician will fade away. हालांकि यह कल्पना की जा सकती है कि एक आदर्श समाज में राजनेता गायब हो जाएगा, लेकिन यह कल्पना नहीं की जा सकती कि एक विशेषज्ञ फीके पड़ जाएंगे। But it is not conceivable that the expert will fade away. लेकिन यह कल्पना नहीं की जा सकती कि विशेषज्ञ फीके पड़ जाएंगे। There will always be need for engineer and scientist. इंजीनियर और साइंटिस्ट की हमेशा जरूरत रहेगी। They cannot fade away even if the politician may fade away. राजनेता के मिट जाने पर भी वे फीके नहीं पड़ सकते। However, I do not think the time is near when the politician will fade away. हालांकि मुझे नहीं लगता कि वह समय निकट है जब राजनेता फीके पड़ जाएंगे। You are young. आप युवा हैं। I should like you to have the pride of youth and the ambition of youth to do something worthwhile a big. मैं चाहता हूँ कि आप में युवाओं का गौरव और युवाओं के लिए कुछ सार्थक और बड़ा करने की महत्वाकांक्षा हो। All of you may not be geniuses, but some of you might yet do worthwhile things in some department of human activity or the other. हो सकता है कि आप सभी प्रतिभाशाली न हो, लेकिन आप में से कुछ आप अभी भी मानव गतिविधि के किसी न किसी विभाग में सार्थक कार्य कर सकते हैं। I do not like people who have no pride and ambition and are just sloppy people. मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जिनके पास अभिमान और महत्वाकांक्षा नहीं है और वे सिर्फ ढोंगी लोग हैं। I am not using the words pride and ambition in a small personal sense. मैं गर्व और महत्वाकांक्षा शब्दों को छोटे छोटे व्यक्तिगत अर्थों में उपयोग नहीं कर रहा हूँ। I do not mean the pride of getting money, which is the silliest of all types of pride. मेरा मतलब पैसा पाने का घमंड नहीं है, जो हर तरह के घमंड में सबसे नीरस है। Pride should consist in doing your job in the best possible manner.
अपने काम को बेहतरीन तरीके से करने पर गर्व होना चाहिए। If you are a scientist, think of becoming an Einstein, not merely a reader in your university. यदि आप एक वैज्ञानिक हैं, तो आप अपने विश्वविद्यालय में केवल एक पाठक नहीं बल्कि आइंस्टीन बनने के बारे में सोचें। If you are a medical man, think of some discovery which will bring healing to human race. यदि आप एक मेडिकल मैन हैं तो कुछ ऐसी खोज के बारे में सोचें जो मानव जाति के लिए उपचार लाएगी। If you are an engineer aimed at some new invention, the mere act of aiming at something big makes you big. यदि आप एक इंजीनियर हैं तो आप कुछ नया आविष्कार करने का लक्ष्य रखें। कुछ बड़ा करने का लक्ष्य ही आपको बड़ा बना देता है। If my colleagues and I and others who function on the public stage today appear big leaders to you, look back to how we become so. अगर मेरे सहयोगी और मैं आज सार्वजनिक मंच पर काम करने वाले अन्य लोगों आपको बड़े नेता लगते हैं, तो पीछे मुड़कर देखें कि हम ऐसे कैसे हो गए। We may have had some virtue and some ability, but essentially we become what we were because we had some ambition and pride, because we hitched our wagon to a star, because we tried to big things, and in so trying our stature increased a little. हमारे पास कुछ गुण और क्षमता हो सकती है, लेकिन अनिवार्य रूप से हम वही बन गए जो हम थे, क्योंकि हमारी कुछ महत्वाकांक्षा और गर्व था, क्योंकि हमने अपने वैगन को एक स्टार पर रोक दिया था, क्योंकि हमने बड़े काम करने की कोशिश की थी और इस कोशिश में हमारा कद बड़ा हो गया था, थोड़ा बढ़ गया था। It is not what you say that matters, but what you do. Think, therefore, of the vast opportunities that the world offers to those who are keen of mind, strong of character, and fleet of foot. आप जो कहते हैं वह मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि आप क्या करते हैं। इसलिए उन विशाल अवसरों के बारे में सोचें जो दुनिया उन लोगों को प्रदान करती है जो दिमाग के उत्सुक के चरित्र के मजबूत हैं और पैर के बड़े हैं। Think of the opportunities that India offers. उन अवसरों के बारे में सोचें जो भारत प्रदान करता है। I know better than you of the difficult problems of India, I suffering and misery of numberless people. भारत की कठिन समस्याओं, असंख्य लोगों की पीड़ा और दुख के बारे में मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। We are trying to meet those problems and solve them not by magic but by strong will and hard work. हम उन समस्याओं का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें जादू से नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से हल कर रहे हैं। There is no magic in this world except the occasional magic of human personality and the human mind. मानव व्यक्तित्व और मानव मन के सामयिक जादू के अलावा इस दुनिया में और कोई जादू नहीं है। It takes time and perseverance to do big things. बड़े काम करने में समय और लगन लगता है। It will not do to be faint-hearted. बेहोश होने से काम नहीं चलेगा। One meets with failure occasionally, but one has yet to go on. कभी कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी को अभी तक जाना नहीं है। Success does not come suddenly or without setbacks. सफलता अचानक या बिना असफलता के नहीं आती। So you have these great opportunities in India. तो आपके पास भारत में ये बेहतरीन अवसर हैं। Prepare yourself for them, grow strong in mind and body.
उनके लिए खुद को तैयार करें। मन और शरीर से मजबूत हो जाओ। Have that inner urge to do big things, and I have no doubt that you will do big things. बड़े काम करने की वह आंतरिक इच्छा हो और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप बड़े काम करेंगे। एब्राइज्ड संक्षिप्त। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है पाठ। अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। दिस लेसन इज द पार्ट ऑफ पीटी नेहरू। यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू का हिस्सा है। विजनरी स्पीच मेड एट द इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में दिया नेहरू का दूरदर्शी भाषण। In his speech, Nehruji explains how reaction of thoughts and action bring about changes in our life and personality. What the place of reading, thinking, pride and ambition in our life is. अपने भाषण में नेहरू जी बताते हैं कि कैसे विचार और कार्य का मेल हमारे जीवन और व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है। हमारे जीवन में पढ़ने, सोचने, गर्व और महत्वाकांक्षा का क्या स्थान है। He says our actions should be guided and inspired by careful thinking. उनका कहना है कि हमारे कार्यों को सावधानी पूर्वक सोच से निर्देशित और प्रेरित होना चाहिए। He calls the youth to avail themselves of all the opportunities to work for their motherland and materialize their long cherished vision. उन्होंने युवाओं से अपनी मातृभूमि के लिए काम करने के सभी अवसरों का लाभ उठाने और अपने लंबे समय से पोषित दृष्टिकोण को साकार करने का आह्वान किया।